Make your point on the News Hour. Join Arnab every night on the News Hour with your question. Ask your question and join the debate. Jat protesters have once again started their dharna demanding their demand for the Jat reservation in Haryana. 55 paramilitary forces has already been called in by the state government, and we are at one of the toll which connects Rohtak to Panipat. Deployment has already started here because from 5 to 6 kilometers away from this place is a place where Jat protesters are sitting at dharna. This place is known as Jasia. 55 paramilitary forces have been called in. Section 144 has already been imposed in several locations, and the state government has said that they won't allow the protesters to go on a rampage because they know last time more than 300 people got serious injuries, 35 people lost their life, and many areas were totally burned down and gutted down by the Jat protesters. 55 companies have been placed at different locations at this toll plaza which connects Rohtak to Panipat. Deployment has already started. Although Jats are saying that they will continue their demand and they will sit on the protest for Jat reservation in the state of Haryana. Well, in fact, Priyank Tripathi is joining us live from Rohtak now. Let's go across to him. Priyank, give us a sense of the situation as it prevails on ground. Rohtak is one of the areas which was badly affected in the first round of agitation by the Jat community. Is the administration looking adequately prepared to handle them this time around? Yeah, certainly they have taken a very so many preventive measures which can stop further rumors, which was one of the causes because of which things totally went out of control. There are small locations where these Jat protesters are holding this kind of protest. We are in Jasaiya, which lies in Rohtak area, and Rohtak police has also done proper deployment on the national highway. Right now, these protesters are sitting right next to the national highway which connects Delhi to Chandigarh, and that was the main area which was attacked by the Jat protesters during the first round of protests which happened. But when the state government assured them that proper reservation will be given in different categories, like 10% reservation was assured to be given in education, 5 to 6% reservation was also given on the A to B category of government job, and similarly 5% was given on the category B and C and D category. Since this was challenged, and since the state government told them that this won't be challenged in the High Court, and the High Court has stopped reservation, and since the petition, the reply of the state government is expected to come tomorrow in the Honorable High Court, the protesters have already started gathering at one of the locations which is known as Jasaiya in Rohtak area. There you can see around 200 to 300 protesters are already sitting here since morning, and they are saying that they are feeling cheated, and the government's assurance that the reservation which was earlier assured by the state government of Haryana, after which the Jat protesters called off their strike, was challenged in the court by one of the protesters who is now a party by the order of the Honorable Court. So they are saying that they want the reservation back which was assured by the state government. They are also saying that the cases which were slapped against those people who were involved in the crime and different cases of rioting should be taken back, and those protesters who were sent behind bars should also be released. So these are the demands which are now being raised. का एक धरना तो ये हमने लगाया है। 148 गांव हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, तो 148 गांव तो यहाँ आने ही आने हैं, और पास के भी जो हमारा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है या जिसका भी जो डिस्ट्रिक्ट नज़दीक है, जींद डिस्ट्रिक्ट है, जो भी सुविधा अनुसार जिसका भी नज़दीक होगा वो लोग सब जाट, हमारे जाट समाज के लोग सब यहाँ धरने पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि ज्ञापन भी आप लोग सौंपेंगे कलेक्टर को, इस तरीके का कोई आप लोगों का? अभी हमारी जो कमेटी है, हमारी जो बुजुर्गों की कमेटी है, हमने जो कमेटी बना रखी है, धरना स्थल की जो कमेटी है, वो जो फैसला करेगी। अभी हमने कोई फैसला नहीं किया, उनको कोई फैसला नहीं है कि कलेक्टर को ज्ञापन देना है या सरकार को ज्ञापन देना है या किसी और प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन देना है। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है किसी से भी, अधिकारी से या हमारी कमेटी के किसी से भी। तो अभी ज्ञापन की कोई बात हम जल्दबाजी में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार जो जाट का जो आंदोलन था वो
उग्र हो गया, जिस तरीके से स्थितियाँ बनी यहाँ पे, आपको लगता है कि उससे कहीं ना कहीं आप लोगों का जो प्रोटेस्ट का जो इंटेंसिटी थी, जो तीव्रता थी, वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गई? जी जी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो लोगों में भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं पूरे समाज में, पूरे मीडिया वर्ग में, या पूरी किताब जहाँ भी दिखाया गया है वो नेगेटिविटी दिखाई गई है। जबकि सबको पता है कि भी 10 दिन के लिए या 5 दिन के लिए जो भी 18 तारीख से पहले जो धरने रखे गए थे रोड पे या सड़कों पे, जो भी अपनी जगह पे बैठे थे, कोई वायलेंस नहीं हुआ था। किसी दूसरी जात ने या 35 बिरादरी ने या किसी सैनी ने, या हम पर्टिकुलर नाम सैनी का ही लूँगा, राजकुमार सैनी का तो मैं पर्टिकुलर नाम ले लूँगा पक्की, बाकी किसी ये नहीं 35 बिरादरी कोई बैनर लगा के हमारा वायलेंस उन्होंने खराब किया। कोई जाट के समाज का आदमी कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। और इसी के लिए आज हम फिर दोबारा से रोड के साथ में हमने इसीलिए धरना दिया है। हम सरकार को बता देना चाहते हैं दोबारा से हम ये धरना देके कि हमने कोई वायलेंस नहीं किया, हमारी तरफ से कोई पहल नहीं हुई, बशर्ते हमें कोई और ना छेड़े। तो क्योंकि अब उम्मीद की जाए कि पहले जैसी स्थितियाँ नहीं होंगी, आप लोग भी अपील करते हैं अपने साथियों से? बिल्कुल, हम अपने साथियों से भी, अपने समाज से भी, और अपने समाज से तो हमारा समाज तो बिल्कुल शांति प्रिय ही बैठेगा। हमारे समाज की तो पूरी, हम तो 35 बिरादरी जो कहते हैं, हम तो 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं। हम तो सबसे कहते हैं शांति की अपील रखें। हमारा भाईचारा वैसा का वैसा ही है। ये आरक्षण हमारा मुद्दा हम मांग रहे हैं, हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लड़ाई हमारी सरकार की है, लड़ाई हमारी प्रशासन से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी जाति विशेष से लड़ाई नहीं है। क्योंकि सरकार की तरफ से तो फिर भी इस पर कुछ कार्रवाई की गई, हालांकि अदालत के इंटरवेंशन के बाद फिर इसे स्टे लगा है। लगता है कि अब जंग जो है सीधा अदालत में ही लड़ने की स्थितियां बन रही हैं। जी, ये तो जो बात बन रही है अदालत की, और जो सरकार के हमारे हरियाणा की अदालत ने जो फैसला दिया है वो तो हमारे खिलाफ ही है। लेकिन सरकार के खिलाफ कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तो एक जाट आंदोलन की बात करते हैं, एक जाट आरक्षण की बात करते हैं, तो उसमें तो सरकार ने बोल दिया कि भाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि कोर्ट नहीं देगा। तो ये तो सारी हरियाणा को पता है, पूरे भारत को पता है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला ये भी दिया था SY वाल का कि हरियाणा सरकार को दिया जाए। तो एक बात बताओ, मैं सरकार से, भारत सरकार से भी ये पूछना चाहता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट छोटी होगी क्या कि उसकी बात नहीं मान्य होती, और ये सुप्रीम कोर्ट, ये हमारी हाई कोर्ट इतनी बड़ी होगी कि सरकार सारी बातें मान रही है। तो पब्लिक के ऊपर तो सारी कोर्ट भी बैठी है, और सरकार के ऊपर ना कोई कोर्ट है, ना कोई अपील है, ना कोई दलील है। जबकि एक मिनट अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम सोमबीर सिया है। जैसे भाई अशोक ने अभी बात बताई, ये थोड़ी सी अधूरी रहेगी इनकी, मैं उसको पूरी कर देता हूँ। जैसे अब ये कह रहे हैं कि ये हाईकोर्ट का फैसला है। हाईकोर्ट का फैसला तो ये भी था, पंचायत चुनाव से पहले इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि भाई क्या नाम है, हर आदमी जिसको वोट डालने का अधिकार है वो अनपढ़ आदमी भी चुनाव लड़ सकता है। कोर्ट का ये डिसीजन था, सरकार ने क्यों नहीं माना? सरकार अपने फैसले पर टिक रही। जब सरकार की कोई बात आती है तो सरकार अपनी बात मनवा लेती है, और एक समाज की जब एक न्याय की बात आती है तो ये कोर्ट को बीच में घसीट देते हैं। तो चूँकि अब आप लोग एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं, कितना लंबा ये आपका एजिटेशन चलने वाला है? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि हम लोगों ने अपनी तरफ से जो करना था किया, अदालत में जो मामला लटका हुआ था। आप लोग कितनी दूर लंबी लड़ाई अब लड़ने वाले हैं सड़कों पर? जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, चाहे कितना ही समय लगो, जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मान लेती, हमारा जो अधिकार है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जब तक वो हमें नहीं मिल जाता, जब तक कितना ही समय लगे लड़ाई जारी रहेगी। शांतिपूर्वक रहेगी इस तरीके से? हमारी तरफ से बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेगी, बशर्ते प्रशासन और सरकार हमें सुइयां ना चबोए। तो पिछली बार भी हमारी कौम को बदनाम करने का काम सरकार ने किया था।